اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقدرها کل ہماری بات چل رہی تھی زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں، جو ہم نے کل متعدد بار اس عبارت کو پڑھا تھا۔ آج اس سے آگے ہم لوگ چلتے ہیں کہ وقدرها یعنی قدر زکوٰۃ الفطرہ، ٹھیک ہے، زکوٰۃ فطرہ کی مقدار 9 ارطال بالعراقی، 9 ارطال یعنی 9 رطل عراقی۔ 9 کس کو بولتے ہیں مہدی حسین؟ 9 کو۔ کتنا ہوتا ہے 9 ارطال بالعراقی یعنی عراقی 9 رطل کتنا ہوگا؟ 1 نمبر کا حاشیہ نظر آ رہا ہے آپ کی کتابوں میں؟ 1 نمبر کے حاشیے پہ آئیے نیچے، اور نیچے جب ہم جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں وَبِحَسْبِ الْكِلو، اور کیلو کے اعتبار سے 300 کلووات تقریباً کتنے کلو ہوگا؟ 3 کلو۔ وَبِالْمَثَاقِيلِ، اور اگر مسقال میں آپ ناپیں گے اس کو تو 614 مثقالا وربع، تو 614 اور ربع یعنی 614.25 مسقال، ٹھیک ہے، اتنا بنے گا۔ 614.25 مسقال آپ کو مسقال میں دینا ہے، اور کلو کے اعتبار سے تقریباً 3 کلو، تو 9 ارطال بالعراقی کتنا بنے گا؟ 3 کلو۔ سمجھ میں آیا جی؟ کہہ رہے ہیں وَقَدْرُهَا 9 ارطال بالعراقی، اور اس کی مقدار 9 رطل عراقی ہے۔ کس میں سے دینا ہے آپ کو؟ کہا من الحنطۃ والشعیر والتمر والزبیب والارز والاقط۔ کہہ رہے ہیں حنطہ کس کو کہتے ہیں شارب؟ گیہوں۔ والشعیر، شعیر کسے کہا جاتا ہے؟ جو کو۔ والتمر، تمر کس کو؟ کھجور کو۔ تمر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کو۔ والزبیب، اور کشمش، ٹھیک ہے، کہ گیہوں، جو، کھجور اور کشمش۔ والارز یعنی چاول۔ والاقط، اقط دودھ سکھا کے کیا بنتا ہے؟ پنیر بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑا جو رہتا ہے، فارسی میں کشک کہا جاتا ہے۔ پنیر کو کہتے ہیں کشک، پکا ہے۔ بہرحال اقط کہا جاتا ہے کہ دودھ کو پکایا جائے، اور دودھ جب سوکھ کے جو کچھ بنتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کو کیا بولیں گے؟ اقط۔ پنیر جیسا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ اللَّبَنِ، کھووا، کھووا ٹکڑے نہیں نہ ہوتا ہے، کیا ٹکڑے ہوتا ہے؟ مطلب زیادہ نہیں، ٹکڑا ہو جاتا ہے، ٹکڑا نہیں ہوتا، جیسے دہی رہتی ہے پیس آتا ہے وہ تو، نہ یہ پیس ہے۔ یہ کچھ دیکھیں 2 نمبر کے حاشیے پہ جائیے، 2 نمبر حاشیے پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لبن مجفف ہے، یہ کیا ہے؟ مجفف یعنی سوکھا ہوا دودھ، مقطع ٹکڑے ٹکڑے، قطعہ۔ اور ہمارے یہاں دیا ہوا ہے شرح میں وَهُوَ لَبَنٌ يُطْبَخُ، کہ دودھ کو پکایا جائے، وَيَنْشِفُ، اور وہ دودھ سوکھ جائے، اور اس کو فارسی میں کشک کہا جاتا ہے۔ بہرحال دیکھیے، پھر بھی میں اس کو مزید دیکھوں گا، اگر کوئی صحیح لفظ اردو میں مل جائے تو مجھے۔ کہہ رہے ہیں تو اگر گیہوں سے ہے، جو سے ہے، کھجور سے ہے، کشمش سے ہے، چاول سے ہے، یا پنیر سے ہے، تو اس پہ زکوٰۃ 9 رطل عراقی دی جائے گی۔ وَمِنَ اللَّبَنِ 4 ارطال بالمدنی، اور اگر دودھ سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں
ठीक है, दूध की ज़कात फितरा दे रहे हैं तो कितनी देंगे? 4 रितले मदनी। 4 रितले मदनी कितना हो जाएगा? तो 4 रितले मदनी जो कि यहाँ के शरह में नहीं दिया है ना किताब में, 4 रितले मदनी होगा 250, 2 किलो 50 ग्राम। 2 किलो 50 ग्राम। 2 किलो 50 ग्राम, ठीक है। व अफज़लुहा, अफज़ले ज़कात फितरा क्या है? दूध पर भी ज़कात वाजिब है। दूध वाजिब है, ये मुस्तहब है। नहीं, यह है कि जो ज़कात फितरा आप दे रहे हैं उस फितरे को अगर गेहूं से देंगे, जौ से देंगे, तमर ज़बीब चावल से देंगे, ठीक है, तो आप देंगे 3 किलो। और अगर दूध से दे रहे हैं, वो फितरा आप किसका, आपके पास भैंस है, आप उसमें से दे रहे हैं किसी को, तो क्या वो भी 3 किलो देंगे? कहा नहीं, वो कितनी देंगे? 2 किलो 50 ग्राम। आया समझ में? 2 किलो 50 ग्राम। और बेहतर क्या है कि ज़कात फितरा किससे निकाले जाए? कह रहे अफज़लुहा, यानी अफज़लु ज़कातिल फितरा, बेहतर है कि अत्तमर किससे निकाला जाए? खजूर से। सुम्मा ज़बीब, फिर किससे निकाले? किशमिश से। सुम्मा मा यग़लिबु अला क़ूतिस सना, फिर जो कुछ आपके साल के खाने पीने में गालिब हो यानी ज्यादा आपने क्या खाया है? चावल खाई है कि रोटी? जैसे कुछ इलाके के लोग हैं कि जो चावल ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ इलाके के लोग हैं जो चावल को बहुत मामूली खाते हैं। उनका जोर किस पे होता है? रोटी पर होता है। कह रहे वो अफ़ज़लुहा अत्तमर, सही है, बेहतर है खजूर। सुम्मा ज़बीब, फिर किशमिश। सुम्मा मा युग़लबु अला क़ूतिस सना, फिर जो गालिब हो आपके साल के खाने में। वयजूज़ु इख़राजुल क़ीमा, और जायज है उसकी कीमत का देना। मसलन अगर आप ज़कात निकाल रहे हैं खजूर से, तो खजूर दें ये जरूरी नहीं है, बल्कि उसकी कीमत भी दे सकते हैं, उसके बदले पैसा दे सकते हैं। आप गेहूं से निकाल रहे हैं, गेहूं दे जरूरी नहीं है, उसकी कीमत दे सकते हैं। समझ गए? वयजूज़ु इख़राजुल क़ीमते, जायज है कीमत का निकालना। वयजिबु अन यख़रुजुहा अन नफ्सिही, और वाजिब है कि यख़रुजुहा यानी यख़रुजु ज़कातुल फितरा, कि ज़कात फितरा को निकाले, अन नफ्सिही अपनी तरफ से, व अन मन याउलुहु या उनकी तरफ से जिनकी वो अयालत करता है यानी परवरिश करता है। व अन मन याउलुहु मिन मुस्लिमिन व काफिरिन, वो जिनकी अयालत करता है चाहे वो मुसलमान हो या काफिर। हुर्रिन व अब्दिन, चाहे आजाद हो या गुलाम। सगीरिन व कबीरिन, बड़े हो या छोटे। अब ये क्या है काफिर के बाद? हुर्रिन व अब्दिन, हुर यानी आजाद, अब्द यानी गुलाम, सगीर यानी छोटा, कबीर यानी बड़ा है। अब्दिन गुलाम, ठीक है। तो पता चला कि उस पे ज़कात वाजिब है अपनी भी, और जिनकी वो अयालत कर रहा है और जिनका वो खर्च चला रहा है, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो, आजाद हो या गुलाम हो, छोटे हो या बड़े हो। यानी घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उस पे भी ज़कात फितरा क्या होगी? वाजिब। ठीक है। हमारे घर में एक हिंदू गुलाम है या नौकर है जो हमारे यहाँ रहता है, खाता है, पीता है, गाड़ी चलाता है हमारी, सही है, उसके खाने पीने की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? मैं उठा रहा हूँ, तो उसकी भी ज़कात फितरा क्या होगी? वाजिब। सही। व इन कान मुतबर्रिअन बिल अयलूला,
चाहे वो तबर्रुअ से काम कर रहा हो, यानी ईसार कर रहा हो परवरिश में। ऐलूला यानी परवरिश। मसलन एक परिवार है कि जिनके बाप का साया इस दुनिया से उठ गया है, मसलन मेरा दोस्त, ठीक है, हमें अल्लाह ने नवाजा है तो हमने क्या किया कि उसके पूरे फैमिली का खर्च, पढ़ाई का, लिखाई का, खाने का, पीने का, दवा का, दरबन का, कपड़ा लत्ता सब मैं उठा रहा हूं। तो क्या दोस्त के फैमिली का खर्च उठाना मुझ पे वाजिब है? नहीं। भाई अपने बाल बच्चों का खर्च उठाना वाजिब है ना, कि मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बीवी है, तो हम सबका क्या करें? खर्च चलाएं। माँ बाप हमारे साथ रह रहे हैं तो हम उनका खर्च चलाएं। लेकिन अगर दोस्त हमारा रहे ना रहे उससे हमारा कोई वास्ता है? सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के सिवा नहीं है। तो वाजिब है शरीयत के एतबार से? नहीं है। लेकिन उसका सारा खर्च हम क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं। खाने पीने का उठा रहे हैं, सही है, दवा का, पढ़ाई का, लिखाई का सारा खर्च मैंने उठा लिया है। कह दिया भाभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहिएगा, जो खर्च होगा ये लीजिए, इतना एडवांस रखिए। अब ऐसी सूरत में ईद का दिन आएगा, चूंकि उनके पूरे खर्च की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं उठा रहा हूं, और ये हमने तबर्रो किया है कि नहीं? तबर्रो कहते हैं ईसार करना। तबर्रो बिद्दम, जैसे खून देते हैं तो क्या करते हैं? तबर्रो करते हैं, डोनेशन होता है, एक तरीके से मदद होती है। तो अगर आप ये परवरिश कर रहे हैं किसी कुनबे की, तो ये परवरिश आप पर वाजिब नहीं है, आपने ये ईसार किया है। तो कहा लेकिन फिर भी ईद के चांद आते ही उनकी ज़कात फितरा आप पर क्या होगी? वाजिब होगी। समझ में आई बात? कह रहे मौलाना वयाजिबु अन यखरुजुहा, वाजिब है कि वो निकाले ज़कात फितरा, अन नफ्से ही, अपने से, यानी अपनी तरफ से, वअन मन याउलहु, और उनकी तरफ से जिनकी वो अयालत करता है, जिनकी वो परवरिश करता है, मिन मुस्लिमिन व काफिरिन, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर, हुर्रिन व अब्दिन, गुलाम हो या आजाद, सगीरिन व कबीरिन, बड़े हो या इनकान मुतबर्रिअन बिल ऐलूला, चाहे परवरिश करने में उसने ईसार से ही काम क्यों न लिया हो, वाजिब नहीं था फिर भी ईसार किया उसने। वयजिबु फीहा अन्नियतो, और वाजिब है उसमें नियत का करना, कि हम जब ज़कात फितरा निकालें तो उसमें क्या करें? ज़कात फितरा की नियत कर लें, चूंकि ज़कात फितरा निकालना इबादत है और इबादत बिना नियत के नहीं होती। व ईसालुहा इला मुस्तहिक़्क़ि ज़कातिल माल, व ईसालुहा यानी ईसालो ज़कातिल फितरा इला मुस्तहिक़्क़ि ज़कातिल माल, उन लोगों के जो ज़कात माल के मुस्तहिक़ हैं। कौन कौन? फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, इब्न सबील हैं, गारिमून है, ठीक है, ये सब आए थे कि नहीं आए थे? कहा कि उन तक व ईसालोहा यानी ईसालो ज़कातिल फितरा इला मुस्तहिक़्क़ ज़कातिल माल, उन लोगों तक जो ज़कात माल के मुस्तहिक़ हैं, ठीक है, इसको कश्क कहते हैं। देख लो भाई, नाम याद नहीं आ रहा है किसका? वो तो नहीं, लेकिन वो मट्ठे का थोड़े बनता है, चावल की वो तो नहीं, ढोली। हाँ, उसी की तरह बनता है। ये तो एकदम अलग है, ये दूध का है। तो ये लगा था ढोली भी दूध की खाना, जनाब चावल की बनती है, जो दूध फट जाता है तो फिर बनाते हैं, वही होगा वो हो सकता है, फटे दूध का जो बनाते हैं। तो ये सब देखा नहीं। यहाँ पे तो लड्डू। चलिए देखिए फिर इबारत को। हाँ, क्या करके आया? कपड़े की तो बात हो गई तुम्हारे। सब्जी आई? सब्जी आई, लेकिन लेने के लिए जाना पड़ेगा, उसमें नहीं आते, मैं खुद नहीं चला सकता। सब्जी तो आ गई। ये कहाँ से बचा के लाए? ये खजूर वाला पैसा है। अच्छा, वापस किया। वो दाल लाए? वो डाल दिया।
दाम क्या था? सकड़ी का पैसा नहीं लिया, रिपेयर किया था, है पकड़ नहीं लिया, हो गया रिपेयर, वो दे दिया इनको। चले अच्छी बात है, हाथों हाथ हो गया तो 100 का भाड़ा 50 अपने में लेना पड़ेगा। 300 का क्या दिया है, क्या पता नहीं चलता इसमें ये वो 5 क्या दिया है, टमाटर तो नहीं दिया है, पालक है, पालक नहीं है, पालक 5-300 की, ये भिंडी है, फ्लावर है, पालक 3 पैकेट है, 130 मिर्चा है, आलू है, धनिया है, गोभी है। ये क्या है 300 का, ये 300 का क्या क्या लिखता है ये? टमाटर तो नहीं है, टमाटर देखिए कभी ठूस दिया है 1100 रुपये कहाँ से। ज़कात फितरा और ज़कात माल को सर्फ करना यानी पहुंचा देना इलल इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम के पास पहुंचाना क्या है, बेहतर है। व मआ गईबतिही, और उनकी गैबत के साथ, इलल मामूनी मिन फुक़हाइल इमामिया, ठीक है, उन लोगों के पास कि जो फुक़हाए इमामिया में से इमाम हैं, उन्हें यानी मराजे किराम। वला युअतल फकीरु अक़ल्लु मिन साइन, और फकीर को नहीं दिया जाएगा 1 सा से कम, यानी 3 किलो से कम किसी फकीर को नहीं देंगे। वला हद्द लिअक्सरिही, और ज्यादा की कोई हद नहीं है। वयुस्तहब्बु इख्तिसासुल क़राबत बिहा सुम्मल जीरान, और मुस्तहब है ज़कात फितरा को मखसूस करना पड़ोसियों से, ठीक है, बिल पहले क़राबतदारों को यानी रिश्तेदारों को, रिश्तेदारों में गरीब ना हो तो किसको, जीरान को यानी पड़ोसियों को, ऐसे देंगे। वयुस्तहब्बु लिल फकीर इखराजुहा, और मुस्तहब है फकीर का निकालना, फकीर का निकालना है, फकीर का निकालना। हाँ, कि फकीर पे वाजिब नहीं है लेकिन मुस्तहब है कि फकीर भी ज़कात फितरा निकाले। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।